Assalamu alaikum, Ushna. Thank you so much for joining the session. Walaikum assalam. How are you? I'm good. I'm good. Pretty much sure a lot of people know you on LinkedIn, but just for the audience, if you can share me what's going on in life, how's everything, how's UAE treating you, everything, ताकि लोगों को पता चल जाए कि उष्णा क्या कर रही है अभी, and then we can start the conversation. Yeah, sure. I'm I'm a marketeer और बहुत ज़्यादा फ़ोकस कंटेंट मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग में रहा है, डिजिटल मार्केटिंग में रहा है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ब्रांड स्ट्रैटेजी, क्रिएटिव स्ट्रैटेजी में है। I'm originally from Pakistan, Karachi, but I moved to the UAE in October 2023, and since then I've been here. I've been working here. So yeah, that's about me. Good to know. Good to know. So, let's start with the one of the basic questions जब भी आप UAE move हो जाते हैं. So, how UAE treating you? Because to be very honest, when someone is working in Pakistan, the dynamics is totally different. Yeah. वहाँ पे काम करने का तरीका बहुत अलग है, वहाँ पे चीज़ों को समझने का तरीका बहुत अलग है. But in UAE, it's a very fast-paced thing. Everything is going very quick, so you need to cope up with that thing. So, first of all, कि आपने क्यों सोचा यूएई आने का? Is it something that you got a job? Because a lot of people has that same question with me कि यार आप यूएई गए कैसे? क्योंकि इट्स नॉट लाइक कि आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने गए हो, मास्टर्स करा हो, फिर आपको जॉब मिली हो। यूएई में यूजुअली लोग ज़्यादातर जॉब हंट्स के लिए आते हैं। सो हाउ वाज़ योर ओवरऑल लाइफ इन पाकिस्तान? एट व्हाट पॉइंट यू थॉट कि यार बस हो गई है पाकिस्तान से, लेट्स मूव आउट टू यूएई और एनी अदर कंट्री एंड हाउ इज़ यूएई ट्रीटिंग यू? Very interesting question. I think this is gonna be a very long answer, Mac. I won't mind, Please no give me the worries. permission. Yeah, sure. अच्छा ज़बरदस्त। तो मेरा सीन ये है कि I'm not from a very privileged background, honestly. I went to a very normal school. I did my intermediate from Karachi from a above average college. It was a really nice college, comics college, and then I went to the biggest state university in Karachi. Even though it's the biggest state university, but it does not have a really good reputation amongst the employers in Pakistan. So I went to Karachi University. I did my bachelor's in public administration and master's in public administration, but my majors were marketing. वहाँ पे एक चीज़ हमने सीखी कि बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स आपके साथ ज़िंदगी में अटैच कर दिए जाते हैं। Uh, that's what you have to break through. You have to push against those stereotypes if you're really willing to do something. If you're really willing to achieve something, you have to push for it. और बहुत बहुत दफ़ा ऐसा भी होता था कि you have your thesis, you have your industry visits and everything, और हम लोग जाते थे ग्रुप में और इंटरव्यूज करेंगे वो तो हमें हमसे सब बात कर लिए, and then people would be like, "Are you from Karachi University?" So, and that we we were proud of ourselves and the department we were in, but we sometimes we would we were taken aback as well कि यार हमारा क्यों इतना perception खराब है. But against contrary belief, अगर मैं आपको बताऊँ मैं, we were around 90 students in the class, और जो लोग जो ज़िंदगी में करना चाहते थे, जो लड़कियाँ काम करना चाहती थी, एक सक्सेसफुल करियर के लिए, वर लूकिंग फॉरवर्ड टू इट, they did it. They're all doing it, mashallah. We're all doing what we wanted to do, and very few of us had to compromise on it. So the reason why I'm sharing all of this information is because I think it's very important for people to know as well कि लोगों ने स्टार्ट कैसे किया, और ये माइंडसेट, इट्स द माइंडसेट, ये माइंडसेट कहाँ से आया, सो यूनिवर्सिटीज़ लाइफ तक, सो व्हिच वाज़ माय स्टूडेंट लाइफ, तब तक नहीं सोचा था कि बाहर जाना है। पढ़ाई के लिए हाँ, सोचा था कि अगर मौका मिलेगा आई वुड वांट टू गो टू डू लाइक अ पोस्ट ग्रेड डिग्री, टू गेट अ पोस्ट ग्रेड डिग्री, बट उसके अलावा नहीं सोचा था। उसके अलावा फिर उसके बाद आई स्टार्टेड वर्किंग रेगुलरली एज़ वेल। So basically I started in the education sector. I started working for an A-level college, and then that's where I really
I realized what, I like to do as well. When I basically started working in my life last semester. तो वो भी जल्दी पढ़ाई भी वो काम भी जल्दी शुरू हो गया था। And then I got some opportunities at some great agencies in Pakistan, at one of the biggest media houses in Pakistan, which is Manhattan International, affiliated with Omnicom Media Group. So that's where I learned a lot, honestly. And then from there, I moved on to Natural Communication, which is one of the biggest, and I think the only private lobbying company in Pakistan as well. So I was still in social media, I was still doing digital strategy, I was still doing brand strategy and all of it. In between हुआ ये कि थोड़ा अ, ऑनेस्टली 2022 तक भी नहीं सोचा था कि बाहर जाना है। ठीक है। स्पेशली काम करने के लिए, मूव करने के लिए। बट 2022 से वी रियलाइज़ ओके, चीज़ें चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो रही हैं, थिंग्स आर गोइंग a bit downhill, especially security wise. So even though I wouldn't say that, I'm from a super privileged background, but alhamdulillah life was comfortable, आपके पास जब आप अपने मुल्क में होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो आपकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको रियलाइज़ भी नहीं होता कि वो आपको कितना सुकून देती हैं, कितना आराम देती है, एंड ओनली व्हेन यू आर अवे फ्रॉम देम यू रियलाइज़, so you probably for a lot of us, we don't have to worry about our meals when we get back home कि यार खाना कौन बनाएगा? Who's gonna make my dinner? For a lot of us, we don't have to worry about taking the public transport कि यार अच्छा आज ऑफिस जाना है तो कैसे जाएँगे? या पढ़ने जाना है तो कैसे जाएँगे? बिकॉज़ वी हैव आवर पेरेंट्स देयर, उन्होंने हमें बहुत सारों को गाड़ियाँ दी हुई हैं, कुछ लोगों को गाड़ियाँ, ड्राइवर सब दिए हुए हैं। यू नो we're very privileged अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह से कि हम सेटल्ड हैं पाकिस्तान में। बट देन कुछ सिक्योरिटी सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं दैट मोटिवेट यू टू मूव आउट। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, my sister and my mother, who are still back in Karachi, they got robbed at gunpoint last night, just last night. So, and then my mother was so traumatized. She was like, "Ushna, isko nikalo." Like, because वो जो था बंदा उसने मेरी बहन पे गन रखी तो my mom saw all of it. She was so traumatized. She was like, मुझे नहीं पता इसका आखिरी सेमेस्टर है, सेकंड लास्ट सेमेस्टर है, just she has to go away from Pakistan. So it's just these kind of things that um that motivate you and that push you to take that decision. So I actually started applying for jobs in UAE in 2022, in the summers of 2022, and then बहुत अप्लाई किया ऑनेस्टली मैं आप समझें कि कराची से बैठे हुए अप्लाई करना, अ, पाकिस्तान में कहीं से भी बैठ के अप्लाई करना यूएई में जॉब्स के लिए, इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स सुपर डिफिकल्ट बिकॉज a lot of times you're not considered for these roles. uh, इसमें especially if you're not working in the tech sector, in the financial sector, उन लोगों के लिए फिर भी आसान होता है because technical it's easier for people with technical skills to get these jobs. But because but what's from what I've seen, the trend is कि जो जिनकी business की degrees हैं, जिनकी जो marketing में हैं, HR में हैं, जो इस तरह के लोग हैं हमारी fields के, उनके लिए it's more difficult for us to find job here, especially even if we're sitting back home and just trying for a job. But then in 2023 summers, I got this opportunity, and it was a long process. यूएई या कहीं भी जाने के लिए और तो खैर मुझे परमानेंटली मूव होने का इतना कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बट फ्रॉम व्हाट आई नो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। इट्स इट्स अ टेडियस प्रोसेस जो चीज़ें कभी सोची भी नहीं होती कि यार अच्छा अब एचईसी से अप्रूव होगी डिग्री, फिर उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स भी जाना है, फिर अच्छा यूएई काउंसिल भी जाना है, फिर आप यहाँ आ जाएँगे, फिर यहाँ पे भी आपकी यूएई काउंसिल से अप्रूव होगी। तो इट्स it's tiring, it's taxing, it's super taxing because especially if you're alone, you have to do it all by yourself. You have to come here, you have to get settled. So it is a taxing process. So this is the
how I ended up in Dubai. Perfect. So the main idea, the main reason of asking this question is just to get an idea, because usually people think that हर बंदे की लाइफ़स्टाइल या लाइफ़ स्पैन सेम है, ठीक है? समटाइम्स एज़ यू जस्ट शेयर्ड दैट, मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान के हालात, यस दैट्स आल्सो वन ऑफ द की रीज़न, बट आल्सो द इकोनॉमिकल सिस्टम, यू नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि देयर आर सम सूटेबल जॉब रोल्स जिनकी सैलरी रेंज इतनी है। एंड इफ यू वांटेड टू एक्सेल इन योर करियर, यू नीड टू फोकस ऑन द इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है? वो अलग बात है कि पाकिस्तान में भी हम इंटरनेशनल क्लाइंट्स पे काम कर रहे होते हैं, बट व्हेन यू मूव आउटसाइड पाकिस्तान, यू गॉट एन आइडिया कि माय एक्सपीरियंस वोंट बी काउंटिंग डाउन, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तान का एक्सपीरियंस एज सच काउंट होता नहीं है। यूजुअली यूएई में भी लोग कहते हैं कि ठीक है यार, आपने काम करा होगा, ठीक है, आपने 5 साल काम करा होगा, आपने 10 साल काम करा होगा, बट द डायनामिक्स आर चेंज्ड, दैट इज़ व्हाई वी कांट sometimes they can't continue, like, count your overall experience Yeah. in UAE, to be very specific, ठीक है? With respect to दूसरी चीज़ ये भी होती है कि people usually think कि it's like कि भाई ठीक है, आप अप्लाई करेंगे और आपकी जॉब लग जाएगी, ठीक है? 2023 में जब आप आई हैं, 2024 की मैं बात करूँ, now visa things are getting very much different over here, ठीक है? So true. It's not about getting a job, it's about getting a job an employer is willing to give you the visa. Yeah. Because in 90% of the cases you might get a job, but the visa is becoming issues, और ज़्यादातर इशू उनका इसलिए होता है क्योंकि अगर आप लड़के हैं, ठीक है? लड़कियों को तो फिर Yeah. भी शायद आपको मिल जाता है, लड़कों को ज़्यादा इशू होता है, ठीक है? तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि पाकिस्तान से जॉब लगती है। ऑन रिकॉर्ड मेरी जॉब पाकिस्तान से लगी थी, उष्णा की जॉब पाकिस्तान से लगी है। लग सकती है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप किस किस मार्केट में किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं, राइट अप्रोच क्या है, ठीक है? फिर वो एक जंग अलग होती है जब आप यहाँ आ जाते हैं, आपके डायनामिक्स बहुत डिफरेंट होते हैं। पाकिस्तान में जैसे आपने कहा कि आप कहीं भी क्यों ना रहते हो, आप बहुत प्रिविलेज ज़िंदगी गुज़ार रहे होते हैं। यू डोंट हैव टू थिंक मल्टीपल टाइम्स कि अगर कोई छोटी-सी चीज़ की बात करूँ, उसमें अगर मैं ट्रांसपोर्ट की बात करूँ, ट्रांसपोर्ट सिस्टम वहाँ का अच्छा नहीं है, बट यूजुअली वी आर प्रिविलेज्ड। लड़कियों की अगर बात करें तो Mhm. उनके अब्बू होते हैं, उनके भाई होते हैं, या कोई ना कोई उनके पास होता है जो उनको इस तरीके के हिसाब से टेक केयर कर रहा होता है, ठीक है? बट ओवर उमेर हियर इतनी छोटी चीज़ के हम क्योंकि हम यूजुअली अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे होते हैं, हमारी आदत इस तरह होती है, हम काम से वापस आते हैं, हमें हमें ये नहीं सोचना होता कि हम खाना क्या खाएँगे रात का, तो ये एग्री, छोटी-छोटी एग्री, चीज़ें हैं। एग्री, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि मूविंग आउटसाइड पाकिस्तान इट्स नॉट कि यार बस वैसे ही डिसीजन ले लेता है, ठीक है? इट्स मोर लाइक अ 360 शिफ्ट टू योर ओवरऑल पर्सनैलिटी, ठीक है? आप लोग तो फिर भी खाना बनाना जानते हैं, कोई लड़कों से पूछे जिन्होंने ज़िंदगी में कभी खाना नहीं बनाया होता। अगर मैं अपनी बात करूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि अगर मैं यहाँ आऊँगा, ओके फाइन, मुझे अपनी लॉन्ड्री खुद करनी पड़ेगी, मुझे खाना खुद बनाना पड़ेगा, या मुझे अपने 24 घंटे को इस तरीके से प्लान करना पड़ेगा। इट्स नॉट अबाउट कि अब मैं एजुकेशन के लिए हूँ या मैं जॉब के लिए हूँ, मुझे ये प्लान करना पड़ेगा कि मैं कब उठूँगा, मैं कब मेट्रो लूँगा, मैं कब ऑफ़िस पहुँचूँगा, मैं ऑफ़िस हुँ। से कब मेट्रो लूँगा, मैं कब वापस आऊँगा। उसके बाद आने के बाद मैं रेस्ट नहीं करूँगा, मैं ये सोचूँगा कि मुझे कपड़े कितनी देर के लिए धोने हैं, फिर मैं खाना कब बनाऊँगा, ठीक है? एज़ अ मैटर ऑफ़ फैक्ट कि आप यहाँ पे हर चीज़ बाहर से खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आप हर चीज़ बाहर से खरीदेंगे तो एट द एंड ऑफ़ द मंथ आप दोबारा सोच रहे होंगे कि इससे अच्छा मैं पाकिस्तान में ही था, क्योंकि you need to manage the finances. So that's a totally डिटेल आंसर जो आपने बताया, और ये बहुत ज़रूरी भी था क्योंकि a lot of people। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताइएगा कि what was the reaction when you are moving out of Pakistan? Like how you मनाया कैसे अपने अम्मा-अब्बा को? क्योंकि जब एक लड़की पाकिस्तान से बाहर जा रही होती है तो पीपल यूजुअली हैज़ अ वरी। वो मुझे अलग बात है कि जब मैं यहाँ आया तो उसके बाद मैंने बोला कि पाकिस्तान के बाहर अगर कोई भी लड़की जा रही है ना, उसको फ़ौरन भेज दो, क्योंकि वो वहाँ ज़्यादा सेफ है। पाकिस्तान में तो फिर भी शायद उसको मसले हो बेचारी को, ठीक है? तो जब आपको ये पता चला कि ठीक है, नाउ एवरीथिंग इज़ सॉर्टेड, नाउ आई हैव टू मूव टू यूएई, हाउ यू टैकल थिंग्स? लाइक आर योर पेरेंट्स इज़ वेरी मच सपोर्टिव, और देयर इज़ समथिंग दैट यू वांटेड टू मेक श्योर कि नहीं भई मैं आपको बता रही हूँ इस तरीके से? क्योंकि दे आर कंसर्न्ड, ऑब्वियसली 2 घंटे की फ्लाइट है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो बराबर में वो आके आपको देख सकते हैं। So, how do you manage things though? Please go ahead. Um, my family supported me a lot, like all of them, all the people in my family supported me. Um, so इसमें बड़ा इसमें कोई कोई मसला ही नहीं हुआ। Honestly, because सब देख रहे थे कि
स्ट्रगल कर रही हूँ मैं किस तरह से। सब ये देख रहे थे कि फाइनेंशियल सिचुएशन पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल क्या इकोनॉमिकल इज़ द राइट वर्ड, इकोनॉमिकल सिचुएशन पाकिस्तान की क्या हो रही है, सिक्योरिटी वाइज़ सिचुएशन पाकिस्तान की क्या हो रही है। तो इट्स ऑलवेज़ दैट, लेकिन ये कि जहाँ तक फैमिली की बात है, जब से मैं आई हूँ, मुझे एक चीज़ लगती है वो है कि इट्स अ लव हेट रिलेशनशिप दैट वी हैव विद आवर होमलैंड। और मैंने एक चीज़ सोची कि अगर हमें अपने मुल्क में सेफ और सिक्योर फ़ील हो, हमें लगे कि देयर आर इनफ अपॉर्च्युनिटीज़ फॉर अस, तो कौन छोड़ के जाना चाहेगा? हाँ, आप इट्स द सेम थिंग कि आप मुझे यूएई की सैलरी जो है वो पाकिस्तान में दे दो और एग् सिक्योरिटी के साथ दे दो तो एग्ज़ैक्टली, नो वन इज़ गोना लीव। एग्ज़ैक्टली। टोटली एग्री विद मतलब अगर अगर आप सेम सैलरी ना भी करें, बट इट्स गुड इनफ फॉर यू to have a good lifestyle, the lifestyle you want, have emergency savings. वेरी इम्पोर्टेंट। कि मतलब अगर आपके अम्मा-अब्बा को कुछ हो जाए, हमारे यहाँ कल्चर नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में मेडिकल इंश्योरेंस का, तो यू नीड टू हैव सम लाइक सेविंग्स फॉर योर पेरेंट्स एंड ऑल ऑफ दैट, कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, कुछ भी हो। सो इफ इफ मुझे ये है कि आपने पूरी ज़िंदगी वहाँ गुज़ारी, पूरी क्या लाइक आधी या अ क्वार्टर, you've spent it back home। आपके सारे दोस्त, आपकी सारी फैमिली, पूरी सोशल लाइफ सब वहीं है। अम, तो अगर अगर आपके ये वाली चीज़ें फैक्टर इन ना हो, ये वाले हालात ठीक हो हर तरह से, तो फिर कौन जाना चाहेगा, इट्स अ वेरी टफ डिसीजन टू मेक। Perfect. Acha, next topic that I wanted to discuss. You had an experience in marketing. You were doing good in life in Pakistan. ठीक है. हुँ, Over here in UAE, you move to this exhibition side, this fancy side जो लोगों को बड़ी फैंसी लग रही होती है कि यार आपका काम तो बड़ा मजे का है, आपको इवेंट में जाना है, आपको इवेंट ऑर्गेनाइज करने होते हैं, बट देन देयर इज अ रियलिटी ऑफ इट। सो इट्स नॉट जस्ट अ पीस ऑफ केक। यस, यूएई के अंदर रोज इवेंट हो रहे होते हैं, बट ऑब्वियसली मैनेजिंग दैम इज अ वेरी डिफरेंट ball game because sometimes you need to understand कि we are dealing with multiple organization with respect to कि हमें ये भी देखना होता है इट्स नॉट ओनली अबाउट द यूएई मार्केट पीपल आर ट्रैवलिंग फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एंड दे आर लाइक बहुत अलग माइंडसेट होता है ठीक है सो बिल्कुल। व्हेन यू स्टार्टेड योर करियर एज दिस इवेंट related work so how you think यार what are the key differences in UAE and in Pakistan ठीक है क्योंकि पाकिस्तान में हम ठीक है पाकिस्तान में इवेंट्स होते हैं आई एम हैप्पी कि अब पाकिस्तान स्पेसिफिकली कराची की बात करूँ तो अब अच्छे इवेंट्स होने लगे हैं जहाँ पे आप अपनी कनेक्शन बिल्डिंग अच्छी कर सकते हैं हुँ। यू कैन मीट गुड पीपल ओवर देयर इंडस्ट्री प्रोफेशनल से मिल सकते हैं बट वो फिर भी कहीं कहीं ना कहीं यूएई के लेवल पे नहीं होता अब अगर मैं बात करूँ लेवल से अगर मेरा मतलब ये होगा कि ना उसका हॉराइजन उतना बड़ा होता है ठीक है ना उसमें एग्जीक्यूशन फेज उतना बड़ा होता है ठीक है समटाइम्स वी ओनली लुकिंग एक्सपो सेंटर पाकिस्तान के अंदर ठीक है जहाँ पे एग्जीबिशन हो रहे होते हैं हुँ। ओवर हियर इन यूएई देयर आर मल्टी प्लेसेस जहाँ पे एग्जीबिशंस भी हो रहे हैं जहाँ पे टेक इवेंट्स हो रहे हैं जहाँ पे एआई हो रहे हैं देयर लाइक मल्टीपल थिंग्स सो व्हेन यू स्टार्टेड योर ओवरऑल करियर इन दिस how I say event related work what are the key elements that you see कि यार मेरा पास्ट एक्सपीरियंस से मुझे इसमें हेल्प आउट मिली ये चीज़ें मुझे सीखनी पड़ी या अगर कोई बंदा इस फील्ड को जॉइन करना चाहता है तो दीज आर द पॉइंटर्स दैट दे नीड टू टेक बिफोर दे वांटेड टू कम बिकॉज़ आई एम प्रीटी मच श्योर इट्स नॉट अ 9 टू 5 जॉब एंड इफ इट इज़ आई थिंक फिर तो बहुत मज़े की बात है बट आई एम प्रीटी मच श्योर इवेंट मैनेजमेंट रिलेटेड थिंग इज़ नॉट 9 टू 5 मुझे तो मैं ऐसा लगता है कि एनीथिंग रिलेटेड टू मार्केटिंग एंड दिस डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग इज़ इज़ नॉट अ टाइम बाउंड जॉब एनीमोर। It is it is a high it has become a high urgency field जिसमें लोगों को वो नाउ नाउ वाला सीन होता है कि ये अभी चाहिए, अभी करना है, ये वाला सीन होता है। Mm. So basically what I'm doing here is I'm still working for an agency which is a creative agency, Boomstick Creative, and our niche is in B2B events. So we do some of the biggest B2B exhibitions and events in UAE and in Saudi as well. How what our role is basically कि जो इवेंट ऑर्गेनाइजिंग कंपनीज होती हैं, they take us on board as their content agency, as their social media agency,
and we help them out with their content campaigns and social media campaigns throughout the year and on site on events as well. अच्छा मुझे इसमें सबसे हेल्प जो हुई वो एक्सपीरियंस की वो मेरे जो बिल्कुल यहाँ से आने से पहले वाला एक्सपीरियंस था नटशेल कम्युनिकेशंस का उससे हुई बिकॉज़ नटशेल इज़ नोन फॉर इट्स कॉन्फ्रेंसेस एंड समिट. So I already had that experience. लेकिन अच्छा उसमें those were huge for us. Those are like really big, कि वो इस्लामाबाद में सरीना में हो रही हैं एंड यहाँ पे कराची में मोवेनपिक में हो रही हैं, पीसी में हो रही हैं तो सबसे बड़े बॉलरूम्स पे बुक हुए हुए होते थे, सब होता था, इंटरनेशनल स्पीकर्स आते थे और इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव्स आते थे दूसरी कंट्रीज़ के, तो हम वो बहुत बड़ी थी। तो लेकिन अगर आप उसको उस वक़्त के हिसाब से मैं अब को कंपेयर करूँ, तो द बिगेस्ट डिफरेंस इज़ कि उस वक़्त भी अटेंडीज़ वर अराउंड 2000 to 5000, 6000 and that's really big for Pakistan. But when I came here, so it's like the formula is the same. Like we kind of have to do the same thing, but on a much larger scale. The scale is massive. So जहाँ 2000 6000 अटेंडीज़ होते थे पाकिस्तान में, अब हम यूएई में अटेंडीज़ की बात करें, विज़िटर्स की बात करें, तो ये जिन बी2बी एग्ज़िबिशन्स पे हम काम करते हैं, उसमें एनीवेयर फ्रॉम 50,000 विज़िटर टू 100,000 विज़िटर्स होते हैं। और तो इसी तरह अगर मैं इसको इस तरीके से देखूँ तो एक्सपीरियंस डू मैटर्स, ठीक है? ऑब्वियसली वो लोगों को ऐसा लगता है कि ठीक है, वो बेसिकली ऑन पेपर काउंट ना हो लेकिन आपको ज़रूर उसकी हेल्प आउट मिल रही होती है अपनी दूसरी चीज़ में, ठीक है? द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांटेड टू हैव एन आइडिया कि ये तो ठीक हो गया कि उसने इज़ डूइंग गुड इन दुबई, हर चीज़ सेटल है। नाउ लेट्स कम टू द रियलिटी फैक्टर्स ऑफ दुबई, ठीक है? व्हाट आर द बेसिक रियलिटी फैक्टर्स इफ अ पाकिस्तानी इज़ starting their life in Dubai? What are the key elements that they need to discuss? Because recently I had a conversation with a friend of mine and she was trying to like she was thinking to move out from हुँ, Pakistan. Okay. On record, I wanted to say that a lot of people think yeah, 5-6 lakh का तो मसला 5-6 lakh में you can travel, like you can shift to Dubai. But on reality, it's more than that. What I personally believe you need to at least have like 15 lakh rupees in hand cash if you wanted to survive for 3 months और स्टार्टिंग ऑफ के आपका वीज़ा लग गया और आप आते हैं, ठीक है? सो व्हेन यू मूव हियर, ठीक है, जॉब तो सेट है, ठीक है, जॉब मिल गई है, आपने बताया कि चलो ठीक है, अटेस्टेशन वगैरह दोज़ आर समथिंग दैट दैट यू कैन डू लाइक ऑन अ नॉर्मल बेसिस। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करता हूँ कि ठीक है, अटेस्टेशन ही तो है, कहीं पे अप्लाई करना होगा, बस थोड़ा वेट करना होगा, थोड़े से पैसे देने होंगे, सॉर्टेड है। Accommodation and transport is the biggest issues when you're dealing with UAE, ठीक है? Because your office might be somewhere in DIFC or near the downtown or somewhere जहाँ पे सारे offices हैं and you can't live over there. या You're living somewhere like far, far away from your office. So जब आप पहले दिन आए तो is it all sorted from your office end or how you are thinking कि यार हमें किस तरीके से इन चीज़ों को भी सोचना चाहिए? क्योंकि लोगों को ये चीज़ नहीं पता होता। लोगों के दिमाग में आता है ठीक है यूएई आ जाएँगे देख लेंगे। बट व्हाट आई पर्सनली बिलीव देखने वाले बिहाफ पे यूएई चल नहीं सकता। यू नीड टू बी वेरी मच आपको बैकअप पता होना चाहिए कि आपके पास इन हैंड कैश होना चाहिए। आप अकोमोडेशन कहाँ पे देख रहे हैं? अगर आप अकोमोडेशन देख रहे हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अकोमोडेशन दैट यू हैव टू सी। फिर ट्रांसपोर्ट देख रहे हैं तो आपको किस तरीके से देखना है, ठीक है? सही है, सेफ्टी है, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कि मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ, बट देयर माइट बी लाइफ डिफरेंसेस तो उसको किस तरीके से देखा? कोई टिप एंड ट्रिक देना चाहोगे कि यार ये चीज़ें मैंने ट्राई करी थी, मेरे लिए काम करी या नहीं करी? आप करोगे तो आपके लिए फ़ायदा है या नहीं? हुँ। अच्छा स्पेशली व्हेन वी आर कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान तो मुझे ऐसा लगता है कि फॉर अ लॉट ऑफ अस हमारी जो सेविंग्स होती हैं, जो हमने पिछले 2, 3, 4 साल में की हुई होती हैं, वो हम लेके आ रहे होते हैं यहाँ ताकि हम जॉब ढूँढ सकें। 3-4 मतलब 3-4 महीने लगा के। अम, आई लव द फिगर दैट यू कोटेड 15 लाख लेकिन मुझे लगता है उसमें भी जो भी आएगा दैट पर्सन वुड बी स्ट्रेच्ड अ बिट थिन क्योंकि उसमें भी आपको ज़रूरी नहीं है अकोमोडेशन आपकी मर्ज़ी की मिले, हो सकता है आपको शेयरिंग में रहना पड़े, हो सकता है आपको पार्टीशन में रहना पड़े। मतलब
You will have हाँ, to compromise मतलब a मैं bit. मतलब मैं जो अमाउंट बता रहा हूँ उसमें आप रोज़ मैकडॉनल्ड्स नहीं खा रहे होंगे, बट इट्स अ बेयर मिनिमम अमाउंट, ठीक है? आई टू Exactly. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑन अ वेरी सीरियस नोट अगर मैं डिस्कस करूँ, 15 लाख रुपीज़ इज़ नॉट जस्ट अ पीस ऑफ केक व्हेन यू आर वर्किंग Yeah. इन पाकिस्तान। Sometimes तो आपकी it's सेविंग्स uh, आपके some, 3-4 साल की सेविंग्स होती हैं। sometimes it's like 3-4 years of your saving जैसा आपने कहा है, ठीक है? एंड देन यू नीड टू डबल थिंक ऑफ इट, क्योंकि आई एम प्रीटी मच श्योर कोई कंपनी ऐसी तो नहीं होगी कि वो आपको 3 महीने की छुट्टी देके और वो बोलेगी जाओ ट्राई करके आओ और 3 महीने बाद अगर ना बने तो वापस आ जाओ। बिकॉज़ व्हाट आई सी इज़ इतना अगर आसान होता तो पूरा पाकिस्तान यूएई में होता, ठीक है? ऐसे अ, दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि आप जब आ जाए तो इतनी सेविंग्स लेके, आपका कॉम्पिटिशन पाकिस्तानियों से नहीं होता, आपका कॉम्पिटिशन उन नेशनैलिटीज़ से होता है जिनको यूएई का पासपोर्ट, यूएई का वीज़ा विद इन अ डे और विद इन फ्यू आवर्स मिल सकता है। बिल्कुल। I'll be discussing about European, Chinese, Korean, Indians, नेपाली, बांग्लादेश, they're like आप ऊपर देखते हो आपको हर बंदा दिख रहा होता है, ठीक है? So you need to also consider the fact कि वो जो 15 लाख रुपए हैं वो ऐसे हैं कि अगर हो सकता है कि वो बर्नआउट होते हैं, बिकॉज़ आई हैव सीन पीपल जो आए, उन्होंने 3 महीने गुज़ारे एंड दे डिडन्ट गेट अ जॉब, ठीक है? हुँ। सो दैट्स द मेन थिंग, जब आप उस वो भी चीज़ का ख़्याल रखना होता है। सो हाउ वाज़ योर थॉट ऑन लाइक व्हाट्स योर थॉट ऑन इट? कि ठीक है 15 लाख लेके आना सही बात है, आने चाहिए, नहीं आने चाहिए, क्या सीन है? हाँ, तो बेसिकली ये सवाल उमैर बहुत लोग पूछते हैं और इसका जवाब मुझे लगता है बहुत आसान है क्योंकि हर इंसान को अपनी सिचुएशन का खुद सबसे बेहतर पता होता है। हुँ, सही है, तो अगर अगर मैं ब्रेड विनर हूँ अपनी फैमिली की, मेरी अर्निंग से घर चल रहा है, हुँ, ठीक है? और मैं जॉब छोड़ के आ रही हूँ 3 महीने के लिए और अपनी सेविंग्स भी साथ लेके जा रही हूँ और मुझे अनसर्टेनिटी है कि मुझे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी यहाँ पे और फिर वापस जाके भी पाकिस्तान की जॉब मार्केट भी मुझे अफ़ेक्ट करेगी कि मुझे वहाँ भी जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। दैट्स टू मच ऑफ अ हाई रिस्क फॉर मी। हुँ, ये अगर मुझे पता है अपनी सिचुएशन है कि मेरी सिचुएशन ऐसी है और मेरे घर वाले सफ़र करेंगे और ये नहीं तो इट्स टू हाई ऑफ अ रिस्क। इट कैन पे ऑफ बट इट कैन नॉट। यू कैन सफ़र एज़ वेल। दूसरी तरफ इफ़ यू थिंक यू हैव अ सपोर्ट सिस्टम बैक होम जो कि आपका ख़्याल रख सकते हैं, आपके घर का ख़्याल रख सकते हैं एंड इफ़ योर हाउसहोल्ड इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन योर अर्निंग, यू शुड डेफिनिटली टेक दैट रिस्क, डेफिनिटली। क्योंकि 3 महीने कुछ लोगों को 3 महीने में भी जॉब्स नहीं मिलती हैं और उनको वापस जाना पड़ता है और उनको दोबारा 2 महीने, 3 महीने के लिए जॉब्स के लिए ढूँढने के लिए आना पड़ता है, उनको मिल जाती हैं। तो इट माइट जस्ट टेक मोर देन 3 मंथ्स एज़ वेल। वी हैव टू ऑलवेज़ कंसिडर दैट। So that's the thing about jobs. परफेक्ट। मतलब रियलिटी यही है कि every person has a different mindset, every person has a different backup. So before coming to UAE, please be double sure about it. क्योंकि Um, sorry, I just add one thing. एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती। हुँ, हो सकता है कोई जो अगर एक बंदा मेरी फ़र्ज़ करें मेरा भाई-बहन कोई भी यूएई आना चाह रहा हो एंड इट माइट नॉट बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर देम। Canada might be the best option for them. UK might be the best option for them. Europe might be the best option for them. Saudi might be the best option for them. So you really need to do your research. I think thorough research is very important. उसमें फिर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आपकी जो सेविंग्स हैं आप उसमें गुज़ारा कर सकते हैं, शुरू के कुछ दिन नहीं कर सकते। आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि जो आपकी फ़ील्ड है, उसमें आपकी नेशनैलिटी के लोगों को रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। हुँ, दूसरी तीसरी चीज़ ये है कि आप देखें आपकी जो फ़ील्ड है वो आप उस मुल्क में कितना ग्रो कर रही है या हुँ। नहीं कर रही। तो रिसर्च आई थिंक रिसर्च इज़ योर बेस्ट फ्रेंड इफ यू वांट टू मूव समव्हेयर लाइक यूएई परफेक्ट। इट्स सुपर इम्पोर्टेंट। Let's back to a question that I have in mind is what do you think how LinkedIn or your personal brand or your visual representation help you to getting a job? ठीक है। अ लॉट ऑफ पीपल कम टू मी एंड दे से कि यार हम कहीं अप्लाई करते हैं और हमारी जॉब नहीं मिल रही है। एंड इट्स अ वेरी सिंपल मैथ के पाकिस्तान में भी ऐसी है, ठीक है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप कितने भी अच्छे बंदे या बंदी क्यों ना हो, आपको कितनी भी अच्छी नॉलेज क्यों ना हो, 99.9% आपका जो पहला
पहला पॉइंट होगा जहाँ पे लोग आपको देख रहे होंगे वो वर्चुअली होगा। वो फिर आपकी रिज़्यूमे हो, वो फिर आपका लिंक्डइन हो, वो फिर आपकी प्रोफ़ाइल हो, ठीक है? सो व्हाट डू यू थिंक communication building, connection building, making all this LinkedIn profile, ठीक है? Because what I see in last 2-3 years, people understand कि this is important. Yeah. This is not just a part of it कि मुझे जॉब चाहिए होगी तब मैं LinkedIn पर आऊँगा, ठीक है? Because till the date LinkedIn is a very professional platform in Pakistan and वो अलग बात है, ठीक है, उसको शादी डॉट कॉम, टिकटॉक या कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। एवरी प्लेटफॉर्म हैज़ देयर अप्स एंड डाउन्स। But till Yeah. the date, LinkedIn is a very professional platform, ठीक है? And फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ द ओनली प्लेटफॉर्म जहाँ पे कोई सिर्फ़ आपके एक्सपीरियंस के साथ-साथ आपको ये भी देख सकता है कि आप कल्चरल फिट कैसे हो। क्योंकि ओवर हियर इन यूएई companies usually tend to see कि are you a cultural fit or not, because it's not about working in a company जहाँ पे हर कोई उर्दू बोल रहा है। ठीक Hmm. है? सो कम्युनिकेशन इज़ अ बैरियर, ठीक है? देयर इज़ नो सच थिंग लाइक कि आप जहाँ काम कर रहे हो वहाँ पे हर बंदा आपकी नेशनैलिटी वाला होगा। आई हैव एक्सपीरियंस वर्किंग इन अ कंपनी जहाँ पे आई थिंक 50% पाकिस्तानीज़ और 50% अलग। एंड आई आल्सो हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ कंपनी जहाँ पे आई थिंक शायद 2 या 3 लोग ही पाकिस्तानी थे और बाकी सारे के सारे दूसरी नेशनैलिटीज़ के थे। व्हेन यू वर अप्लाइंग from Pakistan. What are the key pointers that you have seen कि यार मुझे इन-इन चीज़ों पे काम करना है? I'm pretty much sure you have work on your resume, you have work क्योंकि अगर आप कहीं पे भी अप्लाई करते हैं, ठीक है? तो I'm pretty much sure कि बाहर तो अगर आप अप्लाई करते हैं, अब वो आपके लिंक्डइन पे जाएँगे और वो आई थिंक 30 सेकंड, 20 सेकंड में अंदाज़ा लगा लेंगे कि इज़ दिस प्रोफाइल इट गुड इनफ और Hmm. नॉट, ठीक है? Hmm. So, what are the tips and tricks that you use when you were applying? Because you said that you were applying from 2022 and get a job in 2023. I'm pretty much sure उसमें एक और चीज़ को मुझे बताना उसके अंदर कि रिजेक्शन फेस कैसे करते हो? ठीक है? क्योंकि पाकिस्तानी को ना रिजेक्शन फेस करनी आती ही नहीं है। इफ यू गॉट अ रिजेक्शन ईमेल तो लोगों को लगता है कि भाई ये कैसे हो गया? मैं तो बहुत अच्छा एम्प्लॉयी हूँ, ठीक है? एंड व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि अगर मैं अपनी ईमेल भी खोल के दिखाऊँ तो शायद इतनी रिजेक्शन ईमेल्स होंगी बिकॉज़ रिजेक्शन इज़ नॉट ओनली कि यू आर नॉट कैपेबल इनफ। इट मे बी समटाइम्स कि दे आर लुकिंग समथिंग एल्स। मे बी इट्स अबाउट money, maybe it's about qualification, maybe it's about a lot of different things. So, how was your experience from 2022 applying consecutively and getting a job in 2023? What are the steps that you have taken? Are you like someone making multiple resumes? Are you like someone also focusing on your personal brand? Um, how you are reaching to HR professionals? Because to be very honest, अगर वो सर्च भी करते हैं तो रीजन के हिसाब से और ठीक है, ये एक एक मैं देख रहा होता हूँ आजकल के लिंक्डइन पे बहुत सारे लोग कराची में होते हैं, वो अपनी जगह अपना रीजन चेंज कर देते हैं कि उनको इस तरीके से शायद रीच आउट करें। बट व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं होगा, ठीक है? Hmm. आप किसी की सर्च हिस्ट्री में आ जाएँगे तब भी वो 20 सेकंड आपकी प्रोफ़ाइल पे जाके देखेगा तो अंदाज़ा लगा लेगा कि आपने काम क्या करा है, ठीक है? आई हैव सीन लोगों की प्रोफ़ाइल जहाँ पे उन्होंने इतना एआई जनरेटेड कंटेंट लिखा होता है कि जब वो पहली मर्तबा वीडियो कॉल पर आते हैं उसका परसेप्शन और जो उनका वर्चुअल परसेप्शन होता है वो बिल्कुल अलग होता है, ठीक है? पीपल ट्राई टू यूज़ एआई इन अ वेरी डिफरेंट मैनर इन पाकिस्तान। उनको अब और मेरे ख़्याल से उनको लगता है कि वो जाते हैं, वो लिखते हैं मंडे राइट अ पोस्ट फॉर मी फॉर दिस फॉर माय लिंक्डइन एंटर जो चीज़ आई कॉपी पेस्ट एंड दैट। बिकॉज़ दिस इज़ नॉट रियल ना मतलब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप कंटेंट की एग्जीक्यूशन कर भी रहे हैं, अपना पर्सनल ब्रांड फेक तरीके से बना रहे हैं, ठीक है? तो यू शुड हैव अ गट्स टू एट लीस्ट काउंटर अटैक इट व्हेन यू आर गेटिंग योर फर्स्ट कॉल ओवर अ गूगल मीट। क्योंकि अ रिक्रूटर आई थिंक माइट हैव लाइक 20-30 सेकंड टू रिव्यू अ प्रोफाइल, ठीक है? और ईदर इफ यू आर नॉट capable enough or if your profile is not strong enough, I'm pretty much sure you will be getting a rejection. How was your overall experience from 2022, 2023? क्या करा आपने? सीखते हैं उस से। ये इसका जवाब बहुत सारे पार्ट्स में देना पड़ेगा। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू एक चीज़ बोली आपने जो आई डिड इट एज़ वेल। वो जो रीजन चेंज करने वाली चीज़ थी, वो मैंने भी की थी। 2022 से 2023 के बीच लिंक्डइन प्रोफाइल पे उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इट नेवर वर्क्ड, इट वाज़ नॉट द सॉल्यूशन।
आई शो मतलब मैंने दिखाया अपना लिंक्डइन प्रोफाइल पे कि आई एम इन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और दुबई में हूँ और वो बट उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ था व्हेन आई वाज़ लुकिंग फॉर जॉब। दूसरा ये कि अच्छा so I've been on both sides of the table in terms of recruitment. मैं उस खुद रिक्रूट होने वाले प्रोसेस से भी गुज़री हूँ और अब मैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस का भी हिस्सा होती हूँ जो हमारी टीम्स के लिए रिक्रूटमेंट हो रही होती है कंपनी में। I think the thing that you mentioned about culture is very important here. Um, मुझे ऐसा लगता है कि टेक्निकल स्किल आप सीख लेते हैं और एम्प्लॉइज़ को सिखा देते हैं। वो लेकिन वो जो कल्चरल फिट वाला फैक्टर है वो यूएई में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इफ यू आर नॉट अ कल्चरल फिट दे कैन नॉट चेंज योर एंटायर पर्सनैलिटी ऑनेस्टली। वो उसका कुछ नहीं कर सकते। इफ यू आर नॉट अ कल्चरल फिट, यू माइट नॉट बी अ कल्चरल फिट फॉर कंपनी ए, बट यू माइट बी अ कल्चरल फिट फॉर कंपनी बी। तो ये वाली चीज़ होती है। सो that matters a lot. तीसरी चीज़ I think you talked about rejections, right? Rejections का यार honestly you have to brave through it. There are gonna be point when you'll be like मैंने 2000 जॉब्स के लिए अप्लाई कर लिया है और मुझे 1800 रिजेक्शन ईमेल्स आ चुकी हैं। अब मैं क्या करूँ? अब मैं 2000 जॉब्स के लिए और अप्लाई करूँ या वेट करूँ उन 200 जॉब का जिनका रिजेक्शन नहीं आया है, उन पे भी आ जाएगी रिजेक्शन। व्हाट डू आई डू अबाउट इट? Honestly it is a taxing process. बहुत मुश्किल है, you have to brave through it and just I think we all have to remember that we have to be successful only once. It's just that one time we have to be successful and then it will work. So that's on rejection. Last point was about personal branding. So see, LinkedIn is very important. Even I would actually commend the HR industry in Pakistan as well. क्योंकि LinkedIn पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा वैल्यू किया जाता है। बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं रिक्रूटमेंट के लिए या कल्चर के लिए, एम्प्लॉयी ब्रांडिंग के लिए बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में यूज़ किया जाता है। मुझे लगता है टू सम एक्सटेंट लिंक्डइन इज़ मोर पॉपुलर इन पाकिस्तान नाउ एज़ कंपेयर्ड टू द यूएई। हुँ। मेरा एक ये भी परसेप्शन है इस पे। लेकिन तो इवन फॉर ओवर हियर इवन इट्स सुपर इम्पोर्टेंट बट लेकिन एक चीज़ सबने याद रखनी चाहिए कि आई वर्कड ऑन पर्सनल ब्रांडिंग एज़ वेल बिकॉज़ जब मैं नेशनल में थी तो हम कॉर्पोरेट कॉम्स करते थे और कॉर्पोरेट कॉम्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है पर्सनल ब्रांडिंग जो जिसमें हम बहुत सारे कंपनीज़ वगैरह के सीईओज़ की पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करते थे। तो एक चीज़ हमने वहाँ से भी सीखी और एक चीज़ मैं अभी भी लिंक्डइन देखती हूँ तो मुझे लगती है कि you don't have to create a personal brand. You can't create a personal brand. You are already a brand and that's your personal brand. The person that you are, that's your personal brand. And that's how exactly you should portray yourself. Just for the sake of putting up a post or two on LinkedIn, which is not true to your personality, is not going to do anything to your personal brand. और अगर आप बहुत सारे अगर आप अब मैं देखती हूँ अ लॉट ऑफ पीपल आर ट्राइंग टू हेल्प पीपल बिल्ड पर्सनल ब्रांड्स एज़ वेल, व्हिच इज़ अमेजिंग, यू शुड टेक दैट हेल्प। लेकिन आप पहले खुद तो ये समझें कि आपकी पर्सनल ब्रांड है क्या? आपकी पर्सनैलिटी है क्या जो आप लिंक्डइन पे पोर्ट्रे करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं लोगों को? तो इंस्टेड ऑफ जस्ट जंपिंग इनटू क्विक सॉल्यूशंस कि मैं किसी को 500 हज़ार दिरहम महीने के दे दूँ और वो मेरी लिंक्डइन पे 10 पोस्टें लगा दे महीने की। दैट्स नॉट द एग्री। सॉल्यूशन। I agree with the point. The main reason of discussing this is क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि having a good cover, having a good profile picture is gonna change a lot. या Yes, it does. But आपको समझना पड़ता है कि स्ट्रक्चर क्या है। नंबर वन, द नॉलेज दैट यू आर शेयरिंग, ठीक है? एआई से कंटेंट लिखवा के या किसी करंट अफेयर्स पे आपने कोई कंटेंट लिखवा के डाल रहे हो, इफ यू आर गेटिंग लाइक्स, यू नीड टू बी वेरी श्योर कि आपको सेलिब्रिटी बनना है या आपको नोटिस्ड होना है, ठीक है? सेलिब्रिटी बनने के लिए तो यू लड़कियाँ इज़ लाइक एक लड़की अपनी तस्वीर डालें, उनके ऊपर हज़ारों लाइक्स और कमेंट्स आए हुए होते हैं। वी डू हैव पीपल हू आर
वेरी मच इंटरेस्टेड इन जस्ट सीइंग पिक्चर्स, ठीक है? जहाँ पे एक पिक्चर डाल के ऊपर आप कोई भी एक पैराग्राफ लिख दो, ठीक है? दैट्स अ डिफरेंट मोटिव, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हर चीज़ का ना एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? व्हाट आई सी पर्सनल ब्रांडिंग को भी कि दैट डिपेंड्स कि आप किस नीश में, किस मार्केट में काम कर रहे हैं और वो मार्केट में रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी भी कोई ऐसा बंदा जो फाइनेंस में काम करता है, मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करूँगा कि उसका कवर कोई बहुत ही कोई टॉप नॉच होगा। बट Agree. डिपेंड्स कि वो क्या नॉलेज शेयर कर रहा है। क्योंकि पर्सनल ब्रांडिंग या लिंक्डइन इट्स नॉट जस्ट लाइक टिकटॉक और एनी अदर प्लेटफॉर्म कि आज आपने रील डाली कल आप सेलिब्रिटी बन जाएंगे, ठीक है? इट्स अ ऑनगोइंग थिंग। आप 4-5 साल लगाते हैं जस्ट टू मेक द ऑडियंस, ठीक है? आपको किस नीश के लोगों को देखना है, कौन से लोगों को आपको अपना काम दिखाना है, ठीक है? नंबर 1। नंबर 2 कि आप क्या कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसा अभी आपने बोला कि इट्स नॉट अबाउट जस्ट बीइंग राइटिंग अ पोस्ट, इट्स नॉट अबाउट जस्ट गिविंग 500 और 1000 दिरहम्स टू समवन एंड जस्ट टेल देम कि यार मेरी तरफ से कोई कोटेशन या कोई एक ऐसा कोटेशन निकाल के लिया हो कि मैंने ये कहा है और वो डाल दो। मे बी इट हेल्पफुल फॉर सीईओज़, बट ठीक है, वो सीईओज़ को इसलिए चाहिए होता है क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ हासिल कर ली होती है। Exactly. नाउ दे नीड टू मार्केट दैट, ठीक है? ऑलराइट। मैं इसमें बस एक चीज़, आप वो करें, मतलब अब आई एम सॉरी इफ आई केम अक्रॉस रॉन्ग, मेरा मतलब ये था कि आप बिल्कुल करें, लेकिन आप खुद तो समझें एग्री। जैसे फॉर कि आप एग्ज़ाम्पल कितना है पर्सनैलिटी। मैं यही हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब उष्णा काम करती हैं एग्ज़िबिशन रिलेटेड, ठीक है? समझ में आता है कि उनकी उनका कंटेंट एग्ज़िबिशन रिलेटेड ही होगा, हुँ। ठीक है? पीपल यूजुअली फॉलो हर और पीपल यूजुअली इंटरैक्ट क्योंकि दैट्स द फील्ड दैट दे आर इन। आई सी पीपल हू जस्ट पोस्टिंग देयर पिक्चर एंड राइटिंग कि यार मेरी ज़िंदगी का ये फ़लसफ़ा है एंड दैट्स दिस इज़ नॉट गोना हेल्प यू। ठीक है, अगर आपका मोटिव ये वही है ना कि आपका एंड गोल पता होना चाहिए। आपका मोटिव ये आपको 100 लाइक्स चाहिए, इट विल हेल्प। अगर आपको लगता है कि उससे आपको जॉब मिलेगी, इट माइट और इट माइट नॉट। बट यू नीड टू फोकस कि लोगों को क्या देखना है क्योंकि इट्स लाइक टू वे ज़ोन, ठीक है? एक तो आप अपना पर्सनल ब्रांड बना रहे हैं, आप क्या पोस्ट कर रहे हैं। देन यू नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि जो एचआर को देखना है वो है क्या, ठीक है? सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बहुत अच्छी प्रोफाइल बना लेता हूँ, मेरा पोर्टफोलियो सेट है, तो हुँ। एचआर बोलेगा कि अच्छे कवर का मैं क्या करूँगा? ये रिक्वायरमेंट है क्योंकि हायरिंग बेसिकली इस तरीके से होती है कि ऐसा हो सकता है कि हर एचआर को आपके बारे में हर चीज़ ना पता हो, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर अपनी बात करूँ, कोई अगर हायरिंग हो रही है, तो हो सकता है एचआर को मोशन डिज़ाइन का ना पता हो। एचआर के पास एक लिस्ट आएगी, मुझे एक बंदा चाहिए जिसके अंदर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ये चेक पॉइंट्स होने चाहिए। वो मेरी प्रोफ़ाइल को डबल चेक करेगा, ठीक है, ये चेक पॉइंट्स हैं। इंटरव्यू का सेकंड फ़ेज़ होगा जहाँ पे मैं अपने डायरेक्ट मैनेजर्स या अपने हायरिंग मैनेजर से बात करूँगा, तब वो रे इवैल्यूएट करेंगे कि ठीक है, एम आई गुड फिट हुँ। फॉर द वर्क वाइज़, ठीक है? एचआर का काम है कि वो कल्चर फिट भी चेक करेगा, ठीक है? वो देखेगा कि उसको उसको बेसिकली डिवा हायर नहीं करना कि जो रोज़ पोस्ट करे उसके बारे में, अनटिल और अनलेस कि रिक्वायरमेंट ऐसी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एचआर को कंटेंट क्रिएटर चाहिए, ठीक हाँ। है? हो सकता है फिर प्लस पॉइंट है कि हाँ, ठीक है, कौन अगर वो अपने लिए कंटेंट बना सकता है, तो ऑब्वियसली वो हमारे लिए भी कंटेंट बना सकता है। दैट्स अ प्लस विन-विन थिंग, बट हमेशा ऐसा नहीं होता। Um, so I think we have covered a lot of good pointers, Ushna. We have covered the reality of Dubai. We have covered the overall process, how you move to Dubai, and then we also covered the real importance of LinkedIn. These are the main reason of having this discussion. क्योंकि जो लोग रियलिटी में उस फील्ड के अंदर हैं, जो काम कर रहे हैं, लोग ज़्यादा समझ सकेंगे, ठीक है यार, कि अगर वो करें तो हम भी नहीं। और यही एक मेन रीज़न था। आई एम प्रीटी मच श्योर कि इस सेशन से अ लॉट ऑफ पीपल विल लर्न about good things for UAE. They will have a better understanding before moving or taking a decision to move to another country. So thank you so much for your time. It's a very nice session with you, and I'm pretty much sure people will learn from it. Agreed. It was lovely connecting with you. This was long due, Omer. Thank you for having me.